since this is an impromptu session on what I want to do, my work is mainly with water. I run a museum called the Living Waters Museum, and my music particularly talks about water. So I think what I'll do is I'll sing a song on the Ganga, because we have the flowing reeds, but we also have the flowing river, and I'm sure there's a lot of influences that the weaver community and the marine community draw from each other. So yeah, to begin with, a song on the Ganga. And this is basically very interesting because this song actually refers to the definition of how the river is, how it flows, who it is. It's no less than an academic paper. And my research particularly looks at how these traditional communities who have written these songs are no less than academicians who have PhDs today. And interestingly, their work has been able to transform from one generation to another, whereas an academic paper only lives when the author is alive. Oh. So, Jaya Prabala Begavati Sureshwari Jayati Jaya Gange Trijagat Tarini Jagakalushana Shri Parvati Ranganath Suthapara Neka Karahara Tapana Sutabhara Antime Jaya Prabala Begavati Sureshwari Jayati Jaya Gange Tuanira Niramala Chalata Dhala Dhala Nira Niramala Chalata Dhala Dhala Tira Tatayati Shobhini Naganandini Themakaradina Kara Chandrama Gham Dehi Pada Yuga Bhagame Jaya Prabala Begavati Sureshwari Jayati Jaya Gange Jayati Jaya Gange Jayati Jaya Gange Okay. Is Parashi still not here? Non-performing arts, and for this great opportunity, and the fact that today we see such beautiful textiles, but we never know the maker. So our next book that we're coming up with is on the maker and how to credit the maker, how to understand the maker. And so I'm so happy that this Weaver Studio Resource Center's family is growing organically. And thank you to each one of you for being here with us this evening, and thank you for agreeing to be our Dastan books. So I was always fascinated with storytelling. I was always fascinated with the art of storytelling, with the art of textiles, and all the links and connections. I was not from the field, so when I came from a field of management, which was very stale and boring, and from the field of law, which had different kind of stories that we heard and we read, I felt that this was so beautiful to be able to tell these stories which have truth and myth, and you don't know what you really want to understand, believe, what is being researched, what is being documented,
what is true or what is that of the imagination, and is imagination your only limitation? So here we are with my favorite quote, and thank you for being here with us this evening. Zahid Hussain, a distinguished thespian, voice artist and one of Kolkata's pioneering dastangos, known for his evocative command of language. Palash Chaturvedi, a visual artist, playwright, teacher and co-founder of East India Dastangois, whose practice blends contemporary sensibilities with traditional narrative forms. You already heard Sukrit, a musician, heritage practitioner and researcher, whose 2 decades in Indian classical music and work across global heritage organizations allows him to interpret history through sound with rare sensitivity. His music this evening adds depth, atmosphere and emotional resonance to the tale. Dastangoi is given me great joy whenever both the Dastangois have given me great joy every time I've heard them. I met them many a times at Alka Jalan Foundation, KCC, here and there, and we would, after their programs, I would just sit in front of them and I would tell them any subject, and it took them a minute to start to recite, to connect, to express, to sing, to share, to narrate, and that was what was magical. So without much ado and without creating any further delay, I hand over to them. Thank you so much भाई साहब. और हम शुरू करने के पहले आपको एक छोटा उत्तरीय देंगे. Just a moment. Can we give him a round of applause? होकर पहुंचती है ये मुगलों के दरबार में, फिर वहां से जाती है जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक और फिर अफीम खानों में, और 1930 साल आते आते हिंदुस्तान के सबसे पुराने, सबसे बड़े दास्तान आखिरी दास्तान वो मीर बाकर अली का इंतकाल होता है, और उसके बाद दास्तानें जो हैं वो एक तरह से हमें सुननी और सुनाने की रवायत जो है वो भी उनके साथ चली जाती है। लेकिन 2005 में इसका रिवाइवल जो है वो दिल्ली में हुआ, और फिर उसके बाद ये सिलसिला वापस से शुरू हुआ। शमसुर रहमान फारूकी साहब जो हैं उर्दू के बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े क्रिटिक, उन्होंने वापस से इसको समझ लीजिए, इसमें जान फूंकी, वक्त के तले धूल पड़ी हुई उन किताबों में, उन दास्तानों में फिर से जान फूंकी, तब जाकर जो है हम लोग दास्तान गोई के इस फन को वापस से देख पाए हैं। और 2 लोग यहाँ पर, पता है आप लोगों को किस लिए? 2 लोग, कोई गेस करेगा? 2 लोग हम लोग क्यों? एक ही तो सुना सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब दास्तान कहते गला सूख जाता है तो पानी पीने के लिए ब्रेक भी चाहिए होता ना, तो इसीलिए एक आदमी उसमें गैप में पानी पी सके। और इस फन के लिए पोशाक भी बहुत ज़रूरी है जी। जो पोशाक आज पहनकर आई हैं, इसका भी अपना इतिहास है, क्योंकि जब दोबारा ये फन रिवाइव किया गया तो इसके पुराने अवशेष भी खो चुके थे, तो ये पता नहीं था क्या पोशाक पहनी जाती थी। तो इस वक्त के हिसाब से एक तो उर्दू ज़बान दास्तान गोई को दी गई, ऐसे ये फ़ारसी ज़बान में की जाती थी, पर मॉडर्न दास्तान गोई उर्दू में की जाती। और जब पोशाक इसकी चुननी थी तो उसके पीछे भी काफ़ी ख्याल गए, पीछे उसकी पॉलिटिक्स क्या है, उसका वो क्या कहना चाहती है, अपने आप फन अपने आप में क्या कहना चाहता है। तो पजामा जब चुनना था तो कहा या तो हम अलीगढ़ का पजामा चुने या अमृतसर का पजामा चुने, तो चौड़ी मोहरी का पजामा चुना गया, क्योंकि चौड़ी मोहरी प्रोग्रेसिविज्म की बात करती है और अलीगढ़ मॉडर्निज्म की बात करता है। अवध का इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए अंगरखा पहनाया गया। कोई बहुत भारी पोशाक भी हो सकती थी नवाबों जैसी, पर उन्होंने कहा नहीं, इसमें सादगी ज़रूरी है, इसलिए अंगरखा पहनाया गया। और टोपी जो है वो दुपल्ली टोपी है, कई लोग इसे स्कल कैप भी समझ लेते हैं, पर ये असल में एक दुपल्ली टोपी है। और ये भी पंजाब के इलाके की ही पहचान है, क्योंकि उर्दू ज़बान पंजाब की उस क्षेत्र की ज़बान है। तो आज का फसाना तो हम उर्दू में ही रखेंगे, पर उसके साथ कुछ बाकी लफ्ज़ भी आएंगे। अब देखिए, दर्शन, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ दर्शन मतलब फिलॉसफी वो भी दर्शन में शरीर जो है वो क्या है? वस्त्र है, और हम वस्त्र के बीच ही बैठे हैं और दर्शन जी के सामने भी बैठे हैं। तो दर्शन क्या है?
जी, दर्शन कहता है कि शरीर वस्त्र है। और तो अब मजाजी दुनिया में सिर्फ वस्त्र की ही कीमत है कि यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं। यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं। मुझे एक गिलास बढ़ा दे, जाम कम कम कर कर दे। दे। जी, आप लोग बाबा कह सकते हैं। तो बस अपने फोन जरा खामोश कर लें। क्योंकि आप लोग, मैं नहीं चाहूंगा अपने फोन को फरामोश कर दें, वो तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए और- खामोश कर दें। और एक और चीज है कि थिएटर में और दास्तानगोई में फर्क ये है कि यहाँ फोर्थ वॉल नहीं होती, हम बिल्कुल सीधे है। आपसे बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी उसमें शामिल हो हमारे कॉन्वर्सेशन में। वहाँ आप जब चाहे कह सकते हैं। सही जगह कहेंगे तो अच्छा लगेगा, बुरा गलत जगह कहेंगे तो आह बनकर लगेगी हमारे दिल में। शुरू करें? इजाजत है? इजाजत है? सोच इजाजत दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, जी, चलिए इजाजत। इस जहां की शुरुआत जैसे होती है संगीत से, आवाज से। करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे में अव्वल कलम, सरे लौह पर रख बयाज़े जबी, कहा दूसरा कोई तुझसा नहीं, सबों का वही दीन और ईमान है, ये दिल है तमाम और यही जान है, किसी से बरावे न कुछ काम जान, जो वो मेहरबान हो तो कुल मेहरबान। अगरचे यहाँ क्या है और क्या नहीं, अगरचे यहाँ क्या है और क्या नहीं, पर उस बिन तो कोई किसी का नहीं, और उस बिन तो कोई किसी का नहीं। कलम गो ज़बां अपनी लावे हजार, कलम को ज़बां अपनी लावे हजार, लिखे किस तरह हमद परवरदिगार, लिखे किस तरह हमद परवरदिगार, कि आजिज है या अंबिया की ज़बां, ज़बाने कलम को ये कुदरत कहाँ, वो माबूद यफ्ता खुदाए जहां कि जिसने किया कुन में कौनो मकां, दिया अक्ल इदराक उसने हमें, किया खाक से पाक उसने हमें, किया खाक से पाक उसने हमें। तो आज़रीन, आज की इस खास बज़्म में आपका खैर मक़दम है, स्वागत है। ईस्ट इंडिया दास्तान गोज़ पेश करता है वीवर स्टूडियो की जानिब से दास्ताने तंज़े। जी हाँ, तो गुलगुना कशाने यारज़े शाहिदे बयां इस तरह फरमाते हैं कि दास्तान शुरू होती है दुनिया की पहली बोली से, उस पहले वाक्य से, उस पहले शब्द से, कि जब खुदा ने कुन कहा, जिसका अंग्रेजी में तर्जुमा होता है बी, यानी हो जा, और जहां वजूद में आया ये दुनिया, ये कायनात तमाम ये बनकर आपके सामने आई, और इस दुनिया के बुनकर ने ये खूबसूरत दरख्त, नदी, आबशार, फूल, पत्ते, जानवर और इंसान इस जमीन पर उतारे बुनकर, थी जो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ाते कदीम, थी जो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ात कदीम, फूल था ज़ेब चमन
पर न परेशान थी शमीम। फूल था ज़ेब चमन पर न परेशान थी शमीम, कि वो बहुत बहुत कदीम पुराना दौर था, इतना कदीम इतना पौराणिक कि न कोई गांव बसे थे न कोई शहर इजाद हुए थे। लोग बंजारों की मानंद यहाँ से वहाँ घूमा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए कई जतन किया करते थे। पर सर्दी तो अपने आप में एक महामारी की तरह थी, कबीले के कबीलों को खत्म कर जाती, और वो सरसराती सर्द हवाएं इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन थी। तो ऐसे ही सर्दी की एक ठिठुरती रात में कायन नाम का एक आदमी अपनी गुफा में बैठा ठंड से कांप रहा था। उसका पूरा कबीला बर्फ में दफन हो चुका था। उसे तो यूं लगा कि इंसानी नस्ल, इंसानी कौम उसकी मौत के साथ ही खत्म हो जाएगी, कि इतनी देर में पहाड़ों से चिंगाड़ती हुई तेज हवाएं चलने लगी। और कायन ने मौत के ठीक पहले उस आखिरी लम्हे में हवा की देवी को आवाज लगाई। इंसानी तहजीब की इब्तदा यही है। अब आदमी के इंसान बनने का वक्त आ चुका है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। तो इसके बाद हवा फिर से वैसे ही सरसरा के चलने लगी। कायन ने एकदम से आंखें खोली और उसकी नजरें तहजीब का पहला लिबास, मौसमों के बगैर ज़मीन पे मैं भी अकेला फिरा खुदा की तरह। ज़मीन पे मैं भी फिरा खुदा खुदा की तरह। हम ही सीधा समाधि हम ही समाधि हम ही हम मौनी हम बोले हम मौनी हम बोले। रूप स्वरूप रूप स्वरूप अरूप दिखा के हम ही में हम तो खेले रे अवधूता अवधूता युगना युगना हम योगी योगी युगना युगना हम योगी। आवे ना जावे आवे ना आ जावे मिटे ना कबहू कबहू शबादाना हाद भोगी रे अवधूता अवधूता युगना युगना हम योगी योगी युगना युगना हम योगी युगना युगना हम योगी योगी युगना
क्यों बना हम योगी। कायन ने खाल पहन के और इलाकों में सफर किया और पहाड़ियों से जंगल में आ बसा। ऐसे ही एक दिन जब सर्दियों के दिन बीते तो खाल से बना लिबास उसके बदन पर चुभने लगा। उसने जंगल की घास उठाई, उसे मसलकर मोड़कर देखने लगा। उंगलियों के बीच कुछ लंबी सी रेशम जैसी डोरी बन गई। उसकी आंखों में चमक आई। फिर उसने धागे को एक दूसरे के ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे घुमाया और पहला ताना बाना जैसे हवा से निकली आवाज की तरह बनता चला गया। आसमान ने वो मंजर देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि उस दिन इंसान ने न सिर्फ कपड़ा बुना, अपना सबक सीख लिया था। सदियां गुजरती गईं। कायन के बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनकी पूरी नस्ल धागों से सिलाई और बुनाई का हुनर सीखती गई। पहले टोकरी बनाई गई, फिर छोटी छोटी डोरियां बनाई गईं और फिर वो कपास का पहला कपड़ा जो कपड़े जैसा नहीं, दुआ जैसा नरम था। क्या बात है। जब पहली बार एक औरत उस कपड़े को अपने कंधे पर ओढ़कर निकली तो शहर के बुजुर्गों ने कहा कि आज इंसान ने जिंदा रहने के साथ साथ जीने का तरीका भी सीख लिया। और उस वक्त से आज तक कपड़ा सिर्फ जिस्म की हिफाजत नहीं करता, इंसान की कहानी का हिस्सा भी बन गया। तकरीबन करघा जो है या लूम्स कह लीजिए जिसे, ये सबसे पहला सबूत इसका तकरीबन 7 से 8 हजार साल पहले मिलता है इंडस वैली, इजिप्ट, चाइना जैसी तहजीबों में, सिविलाइजेशंस में। यानी कपड़ा अब सिर्फ ढकने के लिए नहीं, तहजीब का हिस्सा बन गया था। एक अजीब सी बात है, इल्म के मुताबिक कपड़े पहनना इंसानी जबान के मुकम्मल यानी पूरा होने से पहले का हुनर है। यानी इंसान ने मैं कपड़े पहनता हूं कहना बाद में सीखा, कपड़े पहनना वो पहले ही सीख चुका था। कपड़े पहनना इंसान के जिंदा रहने, हिजरत करने और दुनिया को जीतने का रास्ता था। और फिर खुदा ने इंसान को वो कपड़ा अता करने का फैसला किया जिससे परियों के लिबास बनते हैं। मणिपुर की वादियों से एक नदी बहती है जिसका नाम है बराक नदी। बंगाल में वो आके नदी 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है, यानी कुशियारा और सुरमा। कहते हैं कई दिनों की बिरहा के बाद जब उन दोनों नदियों का मिलन होता है, संगम होता है, तो आसमान से मेघ जमीन पर उतर आते हैं। और यहीं पर जन्म होता है मेघना नदी का। कहते हैं कि जब ये मिलन की घड़ी आई तो बादलों से चमकते हुए कई सितारे टूटकर जमीन पर गिरे। आसमान बरखा के काले बादलों से घिरा था और अंधेरे में मेघना नदी कहकशां की तरह बह रही थी और उसके इर्द गिर्द वो जादुई फूटी कपास का पौधा जो इश्क सा नाजुक और मोहब्बत सा महीन। कपास का वो पौधा जो अब केवल कहानियों और किस्सों में बाकी रह गया है। कहते हैं उसके नूर का हर जर्रा आज भी चमकता है बंगाल के इतिहास में, कि हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से। हर जर्रा हर जर्रा हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से। हर सांस ये कहती है कि हम हैं तो खुदा भी है। हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। तो कहते हैं कि मेघना नदी के किनारे नूरा नाम की एक लड़की रहती थी। नूरा के हाथों में जैसे जादू था, जिस करघे को वो छू लेती धागों में जैसे जान आ जाती। उसका ख्वाब था कि एक ऐसी साड़ी बुने जो बादलों की तरह हल्की हो और तारों की तरह चमके। गांव वाले कहते थे कि ऐसा कपड़ा सिर्फ कहानियों में, ख्वाबों में हो सकता है, पर नूरा की दुनिया कहानियों से कब जुदा थी। वो तो ख्वाब और हकीकत दोनों का फर्क जानती न थी, समझती भी न थी। नदी के किनारे नूरा रंग घोलती और हवा धागों को चूम कर उन्हें नगमे देती। एक दिन उसने हवा से पूछा, मैं तेरा नक्श कैसे बुनूं? हवा मुस्कुराई और कहने लगी कि मैं दिखाई नहीं देती मगर महसूस तो होती हूँ। हवा उसे बहा ले गई उस किनारे पर जहां वो फूटी कपास का चमकता हुआ फूल मौजूद था। नूरा ने बड़े करीने से, बड़े पैटर्न से उन फूलों को चुना और उसने धागा काट कर
बांस से बनी लूम पर चढ़ाया और नूरा रात भर चराग की उस मध्यम रोशनी में करघा चलाती और हर ताना बाना एक गीत सा गाता। इसी एहसास से जामदानी का पहला फूल खिला था, रेशम के पत्तों पर हवा की उंगलियों का रक्स हो जैसे। उसी दिन जामदानी का जन्म हुआ, जाम यानी कि फूल और दानी यानी कपड़ा, जैसे ख्वाबों से निकला हुआ कोई महीन कपड़ा। उसके हाथों से उड़ते धागों में कभी फूल उगाते, कभी पत्ते, कभी सितारे। पूरा गांव उसकी बुनाई को हवा में उगते फूल कहने लगा, मानो जैसे सुबह की धूप भी इसमें मुस्कुराते हुए गुजरती है। पुराने बंगाल में ढाका के गिर्द छोटे छोटे गांव थे और हर गांव एक काम का उस्ताद। कुल मिला के 16 गांव, 16 कदम और हर कदम में एक पूरा खानदान माहिर होता था। सबसे पहले रेशों की सफाई की जाती। यकीन मानिए ये काम किसी चाकू, किसी कैंची से, किसी छुरी से नहीं होता था। इसके लिए इस्तेमाल होता था बुआल मछली का जबड़ा। वो उसके छोटे छोटे रेशों को इस नरमी से झाड़ते कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे के बाल सुलझाती। फिर आता सबसे मुश्किल दौर, रेशों को काटना। फूटी कपास को हमेशा से जिद्दी ही कहा गया है, बहुत जिद्दी थी कि ये सूखे हवा में टूट जाया करती थी, गुम हो जाया करती थी। इसलिए धागा काटा जाता था कश्तियों पर, सुबह सुबह या शाम के वक्त जब हवा में नमी सबसे ज्यादा होती। नर्म उदासी और गीली रोशनी में जवान लड़कियां आंखों को तेज करके उन नाजुक रेशों को इकट्ठा करते हुए गीत गाया करती। और मुझे माफ कीजिएगा कि हमारे पास वो जवान लड़कियां नहीं हैं, हम उनसे गाना नहीं गवा सकते, लेकिन इन्हें ही आप कोई देर के लिए जवान लड़की समझ लीजिए, तो ये गाना जो है मुकम्मल तौर पे आपके लिए पूरा करेगा। अभी सामने रानी दादी बैठी है, तो इजाजत। अरे অর্ধমেতে চৈথা পইরা দুইটি পাখি চিরা, এরপরেতে মাঝখানে দাও 10 খান ঝিঙে রাইখা, হইব রে ভাই হইব 5 জন, 10 খানে খাও বিল দেয় আপদ, হইব রে 5 জন, 2 ছাইতে 10 খাও পর্বত, দেখো তাহার পথ, বুনো রে ভাই বুনো না কিসা, আর জামদানিতে সিঙ্গারা নকশা, তাদা হইব তোর জোরে ভাই নকশা পোলা লাগি, আর আধা নকশা বুনা হইছে পিরিত সুতা লাগি, বুনো রে ভাই বুনো নকশা, আর জামদানিতে সিঙ্গারা নকশা, ये বাইতের উপর রেখে কাটা হইব রে 5 জোর, আবার 10 কাটার 2 পাখির শেষে হইব মাথার পর, বুনো রে ভাই বুনো নকশা, আর জামদানিতে সিঙ্গারা নকশা, বুনো রে ভাই বুনো নকশা, আর জামদানিতে সিঙ্গারা নকশা, বুনো রে ভাই বুনো নকশা, আর জামদানিতে সিঙ্গারা নকশা। हम तो कहानियां बुन रहे हैं वैसे। तो ये धागा इतना महीन था कि एक उम्र के बाद बूढ़ी आंखें इस धागे को देख भी नहीं पाती थी। पर इन बोली से, इन गीतों से ये विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है और आने वाली कई पीढ़ियां ऐसे ही बुजुर्गों के जूते सीधी करती रहीं कि इन सादत बजोर बाजुनीस दाना बख्शत खुदा बख्शंदा। यानी हमारा ये जो फन है, हमारी ये जो कला है, हमारी जो विरासत है, ये बुजुर्गों के जूते सीधे करने का सदका है और कुछ नहीं है, क्योंकि जब खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो कई पीढ़ियों तक जामदानी की ये कला ढाका के उन 16 गांव में फिरती, फलती, फूलती और आमद हुई उसके बाद मुगलिया हुकूमत की। तो 18वीं सदी में जब मुगल ढाका पहुंचे तो मालूम हुआ कि ये शहर जो है वो धागों का ताजमहल बुनता है।
वो नूरा की साड़ी देखकर हैरान रह गए और साड़ी इतनी हल्की थी कि उनके हाथ से फिसलकर हवा में तैर गई। जब बादशाह ने देखा तो फरमाया, इस कला को हिंदुस्तान की शान बनाया जाए। और यहीं से जामदानी दुनिया भर में मशहूर हो गई, जैसे कि आबे रवां, शबनम। अरे ये कैसा नाम है कपड़ों का भाई, आबे रवां यानी कि बहने वाला पानी, और शबनम रात की गीली बूंद। भला कपड़े भी इतने नाजुक, इतने शीरीं कब से होने लगे कि उनकी तशबीहें, उनके मेटाफर्स जैसे सिमिलीज दी जाएं, और वो भी बूंदों से और हवाओं से। ये बात भी आजकल किस्से कहानियों में ही रह गई है। आज 300 की गिनती पे आके धागों की सलाहियत का मामला थम जाता है, और फूटी कपास तो इससे 4 गुना यानी कि 1200 तक की गिनती तक पहुंचती थी। दुनिया का सबसे लतीफ, सबसे हसीन, सबसे हवा जैसा कपड़ा, एक ऐसा कपड़ा जिसे देखकर लगता था जैसे परियां हवा के धागों से उसे बुनती। क्या बात है। तो दास्तान के पन्नों में लिखा है कि रोम की शहजादियां इस पर जान निसार करती थी। सर्जन जेम्स टेलर ने 1840 की अपनी किताब में लिखा है, इंपीरियल रोम की खवातीन के लिए ढाका का मलमल किसी खजाने से कम न था। मैंने उर्दू में किया है, उन्होंने अपनी जुबान में किया था। अब्दुल करीम लिखते हैं कि ढाका की बुनाई की तहरीक क्रिश्चियन एरा के इब्तदाई दिनों तक पहुंचती है। यूरोप के तजारती जहाज बंगाल के किनारे आने लगे। डच आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, सबको ढाका के मलमल में अपनी किस्मत चमकती नजर आई। 1750 के आसपास फ्रेंच कंपनी ने एक साल में 2.5 लाख रुपए के कॉटन गुड्स यूरोप भेजे। और 1800 के दशक में 1800 तक जॉन टेलर ने रिपोर्ट भेजी कि ढाका एक साल में उस वक्त में 26 लाख रुपए का कपड़ा तैयार कर सकता है। मानो जैसे कि वो शहर नहीं, एक ख्वाब का कारखाना हो। मलमल सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये दुनिया का पहला ग्लोबल ब्रांड बन चुका था। राजा, महाराजा, बेगम, मलिका, तवायफ, नाचने वाली, ताजिर, मुसाफिर, हर कोई इस हवा जैसी मलमल में अपने ख्वाब लपेट कर चलता था। कि बुजुर्गों ने फरमाया कि मलमल कपड़ा नहीं, हवा की लिखी हुई किताब है, और इस किताब का जिक्र हमें दुनिया भर की पुरानी मतनों यानी कि टेक्स्ट में मिलता है। तो आइए आपको उन सफ़ों के रुखसार छूकर बताएं जो सदियों पुरानी तारीख में चमकती थी। एक किताब है पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, पहली सदी की। उसमें लिखा है, वेरी फाइन क्लोथ्स ऑफ द बेस्ट सॉर्ट कम फ्रॉम द रीजन ऑफ द गैंजेस। अब आप ही बताइए ये कौन सा कपड़ा हो सकता है? अरे जी हाँ, वही जो आप सोच रहे हैं। दिल्ली की महफिल से पहले ही बंगाल के मलमल का चर्चा दुनिया भर में घूम रहा था। मोले बंगाल आन कदर ज़रीफ است के बा नजर मी रसद आज हवा बाफ्ता शुदा است। यानी बंगाल का मलमल इतना महीन है कि लगता है मानो हवा को ही बुन दिया गया। अब सुनो इब्न बतूता किस्सा जो कहता है, في الهند القمش نيم جدا لدرجات عنا يمكنه المرور عبر حلقة। यानी हिंदुस्तान का कपड़ा इतना नफीस होती है कि अंगूठे का आर पार चला जाती है। फिर एक अंग्रेज मुसाफिर टेवर्नियर वो भी कहता है, वो भी इस बात को दोहराता है कि yarns of muslin may be drawn through a ring। देखा, बात जबान की नहीं है, कपड़े के जादू की है। खुदा की कसम, इससे खूबसूरत तारीफ और क्या होगी कि दूर पूरब से चाइना की सदियों पुरानी रवायत में मिमी क्लॉथ और मन मोसीलिम का जिक्र मिलता है। सॉफ्ट एज मिस्ट, लाइट एज वेपर। जनाब धुंध जैसा हल्कापन। अब आप ही बताइए, ये मलमल के सिवा और हो ही क्या सकता है? अंग्रेज जब आए तो उनके दफ्तर में भी मलमल का जिक्र कीमतों में चमक रहा था। मलमले शाही, मलमले फितना, मलमले खास, मलमले क्या क्या, मलमले वो। ये भी किस्सा मशहूर है कि एक बार एक फरंगी ताजर ने मलमल की चादर देखकर हैरान होकर पूछा, इसमें तो हवा भी फंस जाती होगी? बुनकर मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, हवा तो इस कपड़े की मेहमान है। पर फिर वो अंग्रेज जो कभी मेहमान बनकर आए थे, वो हुक्मरान बन गए, रूलर्स बन गए। एक अंग्रेज क्लर्क ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है, these clothes are of such fineness that our looms cannot imitate them। हाँ हुजूर, उन्होंने रेल बनाई,
जेल बनाई, इमारतें और पुल बनाए, पर ढाका का मलमल उसकी नजाकत का मुकाबला वो कर ही न सके। बंगाल का कपड़ा ब्रिटिश मिल्स के लिए खतरा था। ब्रिटिश मिल्स को डर था कि अगर ये कपड़े बाजार में चलते रहें तो उनके मशीन मेड कपड़ों का बाजार तो डूब ही जाएगा। इसलिए उन्होंने इरादतन लोकल इंडस्ट्री को कमजोर करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तानी कपड़े पर भारी महसूल यानी कि टैक्स लगाकर उनको महंगा कर दिया गया। मलमल और जामदानी पर इतना ज्यादा महसूल लगाया गया कि वो विदेशी बाजारों में मुकाबला ही नहीं कर सकते थे। 3 गुना लगा। जी हाँ, साथ ही हम लोग सुन चुके हैं। साथ ही साथ ब्रिटिश मिल्स के कपड़ों पर कोई महसूल, कोई टैक्स, कोई लगान नहीं था। मैनचेस्टर, लैंकाशायर, इनके कपड़े बहुत सस्ते होकर बंगाल में बेचे जाते, और जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने सस्ता मशीन मेड कपड़ा खरीदना जोर शोर से शुरू कर दिया, और बुनकरों की रोजी रोटी वो क्या हुई, वो तबाह हो गई। और बिस्मिल काश आते आज तुम हिंदुस्तान, देखते के मुल्क सारा क्या टशन क्या चिल में है, हाथ की खादी बनाने का जमाना लग गया, आज तो चड्डी भी सिलती इंग्लिशों के मिल में है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों को आर्थिक गुलामी में धकेल दिया। अधिकारी लोग बुनकरों को पेशगी रकम देकर उनसे कपड़ा जबरदस्ती बनवाते थे। बुनकरों को कहीं और बेचने की इजाजत ही नहीं होती थी। रोजाना दबाव, धमकी और जबरदस्ती से काम करवाया जाता था, और उनको कर्ज के रास्ते पर भी भेज दिया जाता था, मजबूरी और दायरे में फंसा दिया जाता था। और हाथ काटने की कहानी, इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी क्या हकीकत है, पता है आपको? अक्सर कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने बुनकरों के हाथ कटवाए थे, ठीक उसी तरह जैसे शाहजहां ने ताजमहल के मजदूरों के हाथ कटवाए थे। आज ये दोनों कहानियां हैं, मुबालगे हैं, तारीखी सबूत इस बात की पुख्तगी को कबूल नहीं करते। मगर ये बिल्कुल सच है कि सजा, धमकी, जबरदस्ती, फजूल के पेनल्टीज, इन सब ने बुनकरों को माशरती और जहनी तौर पर तोड़ दिया था। इस जुल्म ने ही उनकी खानदानी कला को खत्म करने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया। यूरोप की टेक्सटाइल मशीनों ने बहुत तेजी से बहुत सस्ता कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, तो असली ढाकाई जामदानी की बुनाई महीनों या सालों तक चल सकती थी। इसलिए असली जामदानी बहुत सस्ती हो नहीं सकती। 19वीं सदी आते आते ये कला पूरी तरह कमजोर हो गई। ढाकाई मलमल बिल्कुल गायब सा हो गया बाजार से, और जामदानी बुनने वाले घराने एक एक करके मिटने लगे, नीज तो नाबूद होने लगे। जो बचे वो गरीबी के सबब ये हुनर छोड़ते चले गए। मशीनें हाथ की कला पर भारी पड़ने लगी। नूरा जैसी बुनकर लड़कियां कम होती गईं। लोग कहते कि हाथ से बनी चीज अब कौन खरीदता है। और फिर बंगाल के काल ने पूरी तरह से कारीगरी का इकोसिस्टम तबाह कर दिया। लोग जिंदा रहने के लिए बुनाई छोड़कर मजदूरी और खेती करने लग गए। इससे उस्तादों के बाद शागिर्दों का सिलसिला टूट गया। मगर कुछ बुजुर्ग बुनकरों ने कहा, जामदानी धागा नहीं, दुआ है, और दुआ कभी गुम नहीं होती कि मोहब्बत दुआ है। मोहब्बत दुआ है, तुम मुझे दुआ दे देना। तो आज भी जब कोई सिर्फ नाजुक जब जामदानी साड़ी पहनकर मुस्कुराती है, तो नूरा की उंगलियों की गर्माहट उसमें जिंदा हो जाती है फिर से। हर बारीक फूल जैसे कहता है, कला, फन, कला कभी नहीं मरती। कलाकार का ख्वाब धागों में जिंदा रहता है, सांस लेता है। जहां जहां पुराने मुअर्रिख और मुसन्निफ यानी कि हिस्टोरियंस और राइटर्स लिखते हैं, woven air drawn through a ring mist like finer than all other clothes, समझ लीजिए वो मलमल का ही किस्सा सुना रहे हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में ही मुर्शिद कुली खान बंगाल की राजधानी ढाका से समेटकर मुर्शिदाबाद में ले गए, और उसके साथ ही इन 16 गांव के कारीगर धीरे धीरे मुर्शिदाबाद पहुंचने लगे। जी हाँ, कहते हैं कि दरख्त की एक शाख, एक ब्रांच भी अगर रह जाए तो वो फिर से जंगल की शक्ल ले सकता है। फूटी कपास का वो पौधा वो तो बच न सका, पर ये कला मेघना नदी के भागीरथी की तरफ चली गई। मुर्शिदाबाद का नाम सब दिशाओं में मशहूर होने लगा। राजस्थान और गुजरात से आए शहर वाली जैन और भी कई व्यापारियों ने, ताजरों ने इस कपड़े के बाजार में फिर से जान फूंक
दी। आसमान से उतरी ये कला नदियों से बहती हुई अब पूरी तरह दुनिया के बाजार में आ चुकी थी कि मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, आज उन गीतों को बाजार में ले आया हूँ। आज दुकान पे नीलाम उठेगा कौन, आज दुकान पे नीलाम उठेगा उनका, तूने जिन गीतों पे रखी थी मोहब्बत की असास, आज चांदी के तराजू में तुलेगी हर चीज। आज चांदी के तराजू में तुलेगी हर चीज। मेरे अफकार, मेरी शायरी, मेरा एहसास। मुर्शिदाबाद में बड़े बड़े कारखानों में ये मलमल का कपड़ा बनाया जाने लगा। बंगाल का मलमल राजस्थान के रजवाड़ों और मुगलिया तहजीब को भी अपने भीतर जज्ब कर चुका था, और अब बनारस में जरी का काम करने वाले कारीगर भी मुर्शिदाबाद पहुंचे तो जामदानी के कपड़े पर महीन सोने और चांदी के तार भी उभरने लगे। ऐसे तो रास्ते जो भी चमकदार नजर आते हैं, रास्ते जो भी चमकदार नजर आते हैं, सब तेरी ओढ़नी के तार नजर आते हैं। सब तेरी ओढ़नी के तार नजर आते हैं। तो बंगाल में बना तार बादला का काम इतना महीन और ज़हीन था कि लखनऊ की मुकाइश और बनारस का भारी ब्रोकेड इसके सामने फीका पड़ने लगा। और मुर्शिदाबाद को ये शर्फ, ये प्रिविलेज, ये ज़िहानत यानी ये इंटेलिजेंस, ये सकाफत मिली कि वो सोने चांदी को भी इस हवा जैसे कपड़े में घोल देता है, जैसे बादल के भाए पर सितारों की किरचें बुन दी गई हों। वो जब भी करते हैं इस नुत को लब की बखियागरी, वो जब भी करते हैं इस नुत को लब की बखियागरी, फजा में और भी नगमे बिखरने लगते हैं। दरे कफस पे अंधेरे की मोहर लगती है, दरे कफस पे अंधेरे की मोहर लगती है, तो फैज दिल में सितारे उतरने लगते हैं। फैज दिल में सितारे उतरने लगते हैं। जामदानी की कला में तार बदला का असर यह हुआ कि अभी आसमान भी जरी वाला था। ये हुनर अब भी जन्नत की परी वाला था, और अब इससे राजघरानों के लिबास बुने जाने लगे। और जब बात नवाबियत और रईसी की आ रही है तो भाई अब किसका जिक्र आएगा। अवध के नवाब कैसे पीछे रहते जी। शुजाउद्दौला और वाजिद अली शाह के वक्त में ढाका के बुनकरों को फैजाबाद के पास जाइस और टंडा की जमींदारी भी अता कर दी गई। जी हाँ, और यही से माजी यानी पास्ट का एक और सफा पलटता है। ढाकई जामदानी में एक गहरे रंग जमीन पर रंगीन नक्श बुने जाते थे। टांडा जामदानी की जमीन में बने झुमके और बूटी एक ही रंग में रोशनी और अंधेरे का खेल खेलते हैं। पर आज भी वही बांस का लूम और ढाका की पुरानी बोली, वो बुजुर्गों के गीत, वो नूरा का नूर, टांडा जामदानी दरअसल जामदानी को ढाका से दूर नहीं ले जाती, बल्कि अवध में अपना ढाका खुद बसा देती है। टांडा जामदानी अब मेघना नदी के किनारे से अवध के दरबारों की शान बन चुकी थी। कपड़े पर बुनी बेल बूटियां, आम के पत्ते और मछलियों की नक्काशों में आज भी ढाका की गूंज सुनाई देती है। बल्कि बुनाई की इस कला में फंदा, जाली जैसे नए नए तरीके भी शामिल हो गए। और तो और ढाका की इस मुलायम मलमल पर ही चिकनकारी की नाजुक कला भी उभरने लगी। तो ढाका से मुर्शिदाबाद, बनारस से अवध, राजस्थान और पर्शिया की सहराओं को भी एक ही ताने में बुन देती है ये कला। और ऐसे ही सारी सरहदें पार कर जाती है मेघना नदी पर बैठी नूरा। आज भी हाथ में आखिरी फूटी कपास का फूल वो लिए हमारा इंतजार करती है कि वो मेघना नदी सुरमा और कुशियारा में मिलन के गीत आज भी गाती हुई दिखाई देती है। हुकूमतें आई और चली गईं, पीढ़ियों की पीढ़ियां गुजर गईं। 2013 में यूनेस्को ने जामदानी को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के खिताब से नवाजा। जी हाँ, इंटेंजिबल, जिसे छुआ नहीं जा सकता। उसे पहन भी लो तो ये महसूस होता है कि बादलों की चादर लिपटी। जी हाँ, जैसे जापान में टूटे बर्तन को सोने और चांदी से जोड़ दिया जाता है, जामदानी ने भी अपने इतिहास को कभी बिखरने नहीं दिया। आज भी हम हैं उस फूटी कपास की तलाश में कि नूरा का वो नूर अभी भी सलामत है। कलाकारों की तो यही आदत है कि उम्मीद की राह नहीं छोड़ी,
कि रास्ते जो भी चमकदार नजर आते हैं, रास्ते जो भी चमकदार नजर आते हैं, सब तेरी ओढ़नी के तार नजर आते कोई हैं। पागल ही मोहब्बत से नवाजेगा मुझे, कोई पागल ही मोहब्बत से नवाजेगा मुझे। आप तो खैर समझदार नजर आते हैं। आप तो खैर समझदार नजर आते हैं। तो जाते जाते समझदारी की एक और बात, 2016 में जामदानी की साड़ी को GI टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भी अता किया गया, यानी कि असली जामदानी की साड़ी सोनारगांव, शांतिपुर, फुलिया, दानियाखाली जैसी इलाकों में ही मिलती है। ऐसे तो असली कदरदान असली जामदानी की पहचान बखूबी रखते हैं, पर हाथ की बुनाई को समझने और परखने का मुकम्मल तरीका ये है ही सबसे पहले बूटे चिपके हुए नहीं रहते, कपड़े में घुले मिले होते हैं। हर बूटा हाथ से वेफ्ट इंसर्शन के जरिए बुना होता है और उंगली से छूकर आप उठे हुए टेक्सचर को भी महसूस कर सकते हैं इसकी। असली जामदानी के बूटे कपड़े के वजूद का हिस्सा लगते हैं, सतह पर बाद में बनाए हुए नहीं लगते जी। उसकी उल्टी तरफ पर धागे की जाली सी फिनिशिंग या इंटरलॉकिंग थ्रेड्स दिखाई देते हैं। ये हाथ से बुनाई की सबसे सीधी निशानी है। मशीन और पावर लूम में उल्टी तरफ बिल्कुल साफ और सीधी लकीरें होती हैं। मशीन वाला अक्सर कड़क या सिंथेटिक जैसा लगता है, हाथ की बुनाई में थोड़ी बहुत खामियां तो होती हैं। बूटे में हमेशा परफेक्ट सिमेट्री नहीं होती, इसलिए हर एक साड़ी अपने आप में यगाना यानी कि यूनिक है। और पावर लूम में बूटे कंप्यूटर परफेक्ट सिमेट्री रखते हैं और सारे एक जैसे होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह। हाथ के कारीगर की बुनाई कुछ इस तरह की होती है कि लगे कि जैसे ये कपड़ा सांस ले रहा है, वाह। जैसे इसमें कोई जिंदगी बसर करती है, जिसकी तराश उसकी जात का हिस्सा है। उसके हर नक्श में एक जज्बात का किस्सा है। चदरिया चीनी। अरे जग हंसे हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए। अरे जग हंसे हम रोए, अरे ऐसी करनी कर चलो, अरे हम हंसे जग रोए। चदरिया झीनी रे झीनी, ओ जी राम नाम रस पीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, अष्टकमल का चरखा बनाए, अष्टकमल का चरखा बनाए। पांच तत्व की पुनी, पांच तत्व की पुनी। 9-10 मास 9-10 मास बुनन को लागे। 9-10 मास बुनन को लागे। मूरख मैली किनी, चदरिया झीनी रे झीनी। हो राम नाम रस पीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आए, जब मोरी चादर बन घर आए। रंग रेजा को दीनी, रंग रेजा को दीनी। लालो लाल, लालो लाल कर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। चदरिया झीनी
चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस तरह की दास्तान, इस तरह की दर्शन जी आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे कि इस तरह की दास्तान हमसे करवाई, क्योंकि मतलब जैसे हम कहते हैं पहले जो दास्तानें कही गई हैं जिनका हमने जिक्र किया पहले कि दास्तान हुई कैसे इवॉल्व हुई, तो ऐसी दास्तानें शायद पहले कभी नहीं की गई हैं कि हम ऐसे मौजू पर, ऐसे टॉपिक्स पर भी कर रहे हैं जिन पर बात होनी चाहिए और आप लोग सुनने आए हैं। आप लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स पे ऐसे दास्तान होते नहीं और आप लोग सुनने आए हैं ऐसे वक्त में जब बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं कलकत्ता शहर में। एयर लाइन की जो प्रॉब्लम है वो तो आप लोग सबको पता है, एयरफीस की प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज इस दास्तान के ज़रिए हम लोगों ने एक और, जैसे कि हम लोगों ने दर्शन जी आपने देखा था पिछली दफ़ा हम लोगों को, जो हम लोगों ने वो भी तो ऐसी दास्तानें जब तक होती रहीं और आप खुशी खुशी हमें बुलाएं ऐसा करने की। तो मैं चाह रहा था एक बात कि देखिए आज आते ही दर्शन जी ने एक बात कही मुझसे कि देखिए मैं भी थोड़ा आप लोगों के साथ मैचिंग हूँ आज, तो ये बात है। और एक मौका भी है आज जो जिसका मैं जिसकी याद में दिला दूँ आपको, आज 6 दिसंबर और एक ख़ास दिन भी है। तो ये आज दर्शन जी का यौम विलादत है। अब जो लोग यौम विलादत समझते हैं वो लोग मुझे बता दें जल्दी से क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ, तो हम लोग 1 2 3 जी कल है, लेकिन हम आज से ही शुरू कर देते हैं ना। तो क्या इसमें जश्न हयात तो पहले से मनाते हैं ना, जीसस क्राइस्ट की तो प्री क्रिसमस बोलते हैं ना हम लोग, लेकिन आप दिसंबर के महीने में ही हैं और बात ऐसी हो रही है। तो हम लोग उनको ऑन अकाउंट ऑफ 3 हम लोग कहेंगे यौम विलादत मुबारक। 1 शुभ, हम एक बार एक वीडियो ले लेते हैं इस चीज का प्लीज। अच्छा वीडियो ठीक है। तो 1 यौम विलादत मुबारक, आपको ये कहना है यौम ए विलादत, यौम मतलब डे और विलादत मतलब पैदाइश। यौम विलादत मुबारक, क्योंकि हमें कल तो मौका नहीं मिलेगा, कल वो शहर छोड़ के जा रही हैं, दूसरी जगह जा रही हैं, कहीं ट्रैवल कर रही हैं, ये भी मुझे पता है, उन्होंने पहले बताया था, मैंने याद रखा है इस बात को। तो कल तो नहीं रहेगी, आज ये हमें मौका मिला है तो हम आज ही कर लेते हैं अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी। तो 1 2 3 यौम विलादत मुबारक। बहुत शुक्रिया। बहुत मैंने केक का नहीं रेडी, कब से दीदी बोला केक नहीं रेडी आने के लिए मेरा एक दिन उठाएगा, हम